بہتر افتتاح نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ سلسلہ شروع ہوا تھا انگریزی ترجمہ قرآن کا، تاکہ یہاں کے جو بچے ہیں اس میں بیٹھے ہیں۔ یہ آواز آ رہی ہے اس کی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا۔ میں بیان کر رہا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسرے بڑے اسٹوڈیو کا افتتاح ہے، اور خدا کے فضل سے بہت بہتر، گنجائش کے لحاظ سے بھی بہت اچھا اور سجا ہوا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں کئی امکانات ہیں، کئی طرح سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب جو ہماری خواتین ہیں اس ترجمہ کلاس میں شامل ہونے والی، وہ کھڑی رہیں گی یا ان کو بیٹھنے کی جگہ کوئی بنا کے دینی ہے؟ ہاں ہاں، بیٹھیں بڑی محنت کی ہے، صفائی کی ہے، ساری کام اسی لیے کھڑا رکھا ہوں۔ جن بیچاریوں نے محنت کر کے سجایا ان کے لیے کرسی کوئی نہیں، اور مردوں نے کرسی پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے آپ قربانی کریں اپنی کرسیوں کی، لے جائیں وہاں، کرسیاں پیچھے پیچھے کر دیں۔ آج کے اس اسٹوڈیو کا افتتاح قرآن کریم کے ترجمے کی کلاس سے ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے انگریزی ترجمہ قرآن کی کلاسز کا اجرا ہوا تھا، جو دوسری مصروفیات کی وجہ سے بیچ میں بند کرنا پڑا تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ آئندہ مستقلاً ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ قرآن کریم کی کلاس لگائی جائے، اور اگر 2 دفعہ ہو جائے تو ایک دفعہ انگریزی بچوں کے لیے، انگریزی دان لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے، اور ایک دفعہ اردو دانوں کے لیے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ عام سادہ لفظوں میں محاورتاً بھی بیان کیا جائے گا، اور لفظاً بھی ترجمہ بتایا جائے گا، اور اس دوران کوشش کی جائے گی کہ کچھ عربی گرامر کی شدھ بدھ ہو جائے، اور الگ گرامر پڑھانے کی بجائے ساتھ ساتھ چند ایک ضروری نکات گرامر کے اس طرح بیان کیے جائیں کہ بچوں اور بڑوں کے بھی جن کو قرآن کریم کی واقفیت نہیں، عربی گرامر سے بھی کچھ شناسائی ہوتی ہے، کیونکہ عربی گرامر کے بغیر حقیقت میں ترجمہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اور اگر انسان ترجمہ جتنی بار چاہے پڑھے، عربی سے ناواقفیت ہو یعنی گرامر سے ناواقفیت ہو، تو براہ راست قرآن کریم سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہم آگے بڑھیں گے معلوم محسوس کر لیں کہ عربی گرامر کا علم ضروری ہے، مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا، الگ عربی کلاس اگر گرامر کی لگائی جائے تو اول تو بہت سے لوگوں کے لیے مشکل امر ہوگا، دوسرے ہمارے پاس وقت بھی اتنا نہیں کہ انتظار کریں پہلے گرامر پڑھائیں پھر ترجمہ پڑھائیں، تو ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مددگار بن کر آگے بڑھیں گی۔ میرا بھی خیال تھا وہ جو ہمارے بنگالی تلاوت کرنے والے ہیں ان کی آواز میں اگر تلاوت ہوتی تو بہت اچھا آغاز ہوتا، مگر اب میں خود کرتا ہوں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا ہے،
और बार बार रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला जो बामाना लफ्ज़ है वो एक हर्फ है जो सिर्फ बे है। बे अरबी में मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होता है, मगर साथ और मदद के मानी में, उसकी मदद से, उसकी बरकत से, उसकी मायत में, उसके साथ, इन मानों में यहाँ इस्तेमाल हुआ है। इस्म का मतलब है नाम, और अल्लाह सब जानते हैं, तो ये नहीं फरमाया कि बिल्लाह है, बल्कि फरमाया बिस्मिल्लाह है। लफ्ज़ इस्म का अलिफ ऐसा है जो मौसूला कहलाता है, गिर जाता है, और इस वजह से बे इस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है। अगर महज बिल्लाह कहा जाता तो इसमें दो कबाहतें थीं। एक ये कि कई होंगी, लेकिन दो जो जहन में मेरे इस वक्त हाजिर हैं वो ये हैं कि बे और ते और वाव, ये तीन ऐसे हरूफ हैं कि अल्लाह के साथ आएँ और बाद में अल्लाह के आखिरी हरफ पर जर हो तो ये कसम की इलामत बन जाती है। तो बिल्लाह का मतलब ये नहीं होगा कि अल्लाह के साथ, बल्कि अल्लाह की कसम, और यहाँ अल्लाह की कसम खाना मकसूद नहीं है। दूसरे, अल्लाह का वजूद अभी पूरी तरह मुतारफ़ नहीं हुआ, और अल्लाह का मज़मून बहुत वसी है। कुरान करीम जूँ जूँ आगे बढ़ता है अल्लाह ताला का तारुफ करवाता चला जाता है, और अल्लाह का नाम मुतारफ़ है, सब दुनिया जानती है। बस ये नाम जो भी है, जिस चीज़ का भी है, उसकी तमाम सिफ़ात को लफ्ज़ इस्म हावी हो जाता है। तो मुराद ये है कि उस अल्लाह के नाम के साथ जो एक ही और वाहिद अल्लाह है, उसके नाम की बरकत के साथ, उसका नाम लेकर, और एक माना है उसकी इजाज़त के साथ। तो बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम, उसकी दो सिफ़ात नुमाया तौर पर बयान फरमाई गई। एक ये कि सबसे ज़्यादा रहम करने वाला और बिन मांगे देने वाला। क्योंकि इंसान का वजूद भी बिन मांगे आया है और सारी कायनात का वजूद भी बिन मांगे आया है, इसलिए आगाज़ के हवाले से शुरू करना बहुत ही प्यारा कलाम है। और रहमान का मतलब बे इंतहा रहम करने वाला भी है, और बिन मांगे देने वाला का ताल्लुक रहमान बे इंतहा रहम करने के वाले के साथ एक लाजिम मलज़ूम का ताल्लुक है। जो रहम में बे इंतहा न हो, बिन मांगे नहीं दिया करता। और रहीम का मतलब है बहुत रहम करने वाला और बार बार रहम करने वाला। तो रहमानियत जहाँ आगाज़ करती है कायनात का, तख्लीक का और इंसान का, वहाँ उसके साथ रहीमियत ये यकीन दिलाती है कि किसी ऐसे रहमान खुदा के ताल्लुक़ में बात नहीं हो रही जो एक दफ़ा रहम करके भूल चुका हो या छोड़ बैठा हो, बल्कि ऐसा रहमान है जो हमेशा साथ देने वाला, हमेशा साथ रहने वाला है। तो इससे बेहतर अल्लाह का तारुफ और लफ्ज़ों में मुमकिन नहीं है। और अल्लाह ताला की शान है कि कुरान करीम में हर दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ सूरतों का आगाज़ हुआ है, सिवाय एक सूरत के। उसकी हिकमत अलग है जो बाद में होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी है। लेकिन साथ क्या, इस बात को जिक्र नहीं फरमाया गया। और अमूमन तर्जुमों में आप ये पढ़ते होंगे कि शुरू करता हूँ लिख दिया जाता है। मैंने जो कुरान करीम का तर्जुमा शुरू किया है उसमें अमदन इस लफ्ज़ को छोड़ दिया है और ये बयान किया है अल्लाह के नाम के साथ जो बेहद रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। इसलिए छोड़ दिया है कि बहुत से मज़ामीन फिर नज़र से रह जाएंगे। अगर हम ये तर्जमा करें कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ या हम शुरू करते हैं, तो महज शुरू के साथ जो अल्लाह के नाम की बरकत है वहीं तक महदूद दिखाई देगी। हालांकि बे में इजाज़त भी शामिल है।
और लामुतनही और बरक़ात हैं जो इसमें दाखिल हैं। सिर्फ पढ़ने के साथ नहीं बल्कि अमल करने में भी तो अल्लाह के नाम की ज़रूरत है, और तौफीक पाने में भी अल्लाह के नाम की ज़रूरत है, और उसकी इजाज़त के बगैर कोई बात शुरू भी नहीं हो सकती। बस इस हरफ को जो एक लफ्ज़ के मानी और बेहद गहरे और वसी लफ्ज़ के मानी रखता है, इसी तरह खुला रखना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन तर्जमे के वक्त आपका फ़र्ज़ है कि समझ जाएं, ताकि जब भी पढ़ें तो बे को मौका और महल के हवाले से उसके माने जहन में पहना दिया करें। अल्लाह के नाम के साथ अब जब खाना खाते हैं तो कहते हैं बिस्मिल्लाह, मुराद है मैं अल्लाह के नाम के साथ खाना खाता हूँ। एक मेहमान आपके घर आता है, आप कहते हैं बिस्मिल्लाह, कि अल्लाह के नाम के साथ दाखिल हो, अल्लाह के नाम के साथ मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूँगा। तो इसके मानी अगर मुअय्यन न किए जाएं तो इंतहाई वसी हैं और ज़िंदगी के हर शोबे पर हावी हो जाते हैं। दूसरी आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि बिस्मिल्लाह को बाज़ लोग कुरान करीम का हिस्सा नहीं समझते, बल्कि हर सूरत का ऐसा उन्वान समझते हैं जिसका आयात में शुमार नहीं होना चाहिए। इसलिए वो जो इसको बिस्मिल्लाह को हर सूरत का एक जुज़ समझते हैं, वो पहली आयत के तौर पर बिस्मिल्लाह को शुमार करते हैं, और जमात अहमदिया उन्हीं में से है। और वो लोग जो बिस्मिल्लाह को अलग रखते हैं, उनकी कुछ वजूहात भी हों। एक काबिल एतराज़ बात ये दिखाई देती है कि कुरान के अंदर बकसरत ऐसी आयात मिलेंगी, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो गोया कुरान का जुज़ नहीं है, और ये दुरुस्त नहीं है। हालांकि बे से लेकर नास की सीन तक हर चीज़ जो कुरान के अंदर है वो कुरान का हिस्सा है। बस जमात अहमदिया इस मसलक पर कायम है, इसीलिए कुरान करीम में जो जमात अहमदिया की तरफ से शाया किया जाए, बिस्मिल्लाह को नंबर 1 दिया जाता है। तो दूसरी आयत सूरह फातिहा की यह है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल का लफ्ज़ कुरान में बार बार आएगा, और हम्द के माने समझाने के लिए अल के लफ्ज़ की तशरीह ज़रूरी है। अंग्रेज़ी में इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, यानी दी या दा दोनों तलफ़ुज़ अलग अलग मौक़ों पर इस्तेमाल होते हैं, मगर अल में लफ्ज़ दी के माने पाए जाते हैं और उससे ज़्यादा। अल के अंदर जो मानी पाए जाते हैं उस हवाले से हम्द के माने वही बनते चले जाएंगे। अल का एक मतलब है वो ख़ास चीज़ जिसका मज़कूर हो चुका है, जो ज़हनों में हाजिर है। तो वो हम जिसका तुम्हारे ज़हनों में तसव्वुर है, जो भी है वो अल्लाह के लिए है, हकीकत में खुदा ही की है। अल का एक मतलब है कामिल और हकीकी और सच्ची। तो अल हम्द का मतलब इन मानों में ये बनेगा कि सच्ची और कामिल और यकीनी और हकीकी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। अल का एक माना है सब वो चीज़ें जो इस लफ्ज़ में मज़कूर हैं, जितने भी मानी हैं वो सारे दाखिल हों तो लफ्ज़ अल इस्तेमाल किया जाता है। कि जामे माने जामियत और मानियत देता है। जो कुछ भी हम से वाबस्ता हो सकता है वो तमाम तर अल्लाह ही के लिए है। तो सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जब आप पढ़ते हैं, और सच्ची तारीफ़ या हकीकी तारीफ़ अल्लाह ही की है, तो इनमें इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि तर्जमा करने वाला मजबूर है कि बहुत से मानी में से एक को अख़ज़ कर ले, और कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसा माना अख़ज़ किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा हावी हो, या एक दो और भी इजाफे भी कर दिए जाएं कभी तर्जमे में, तो हरज नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं, जिनको वाक़फ़ियत नहीं है, जो तर्जमे पढ़ते हैं, उनको मैं समझा रहा हूँ कि कोई इख्तलाफ नहीं है। अल के वसी मानी में से बाज़ एक को ज़्यादा पसंद करके तरजीह दे देते हैं, बाज़ दूसरे को तरजीह दे देते हैं, और तर्जमे की ये मजबूरी है, तफसीर तो नहीं है। बहरहाल तर्जमा करने वाले को अल्फाज में महदूद होना पड़ता है। इसलिए मैंने इसका ये तर्जमा किया, सब सच्ची तारीफ़ें अल्लाह ही की हैं। सब भी और सच्ची के दो माने दाखिल कर दिए हैं, और मेरे नज़दीक ये दोनों लफ्ज़ मिल के जामे माने बन जाते हैं।
اور ہر پہلو پر حاوی ہو جاتے ہیں، ہر غلط پہلو کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تمام تر کہنا بھی درست ہے اور سب سچی تعریفیں کہنا بھی درست ہے۔ تو سب سچی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہاں بھی لے کا لفظ، حمد کا مطلب ہے تعریف، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ لے کا مطلب ہے لیے، للہ، اللہ کے لیے۔ سب سچی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دو صفات کا ذکر پڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اب ایک اور صفت کا بیان ہوا ہے جو ہے رب العالمین۔ العالمین کا مطلب ہے تمام جہان، یہاں بھی وہی لفظ ال داخل ہے، اور یہاں سچا، حقیقی، غیر حقیقی کا بحث نہیں ہے۔ تمام وہ کائنات جس کا تصور لفظ عالم میں پایا جاتا ہے، اور ہر قسم کے ایسے تصورات جو عالم کی کوئی صورت اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، ان سب پر لفظ عالمین کا اطلاق ال کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو العالمین سے مراد تمام جہان جیسے بھی ممکن ہے، لیکن قرآن کریم میں بعض جگہ عالمین کا لفظ مخصوص عالمین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور وہاں لفظ ال وہ معنی دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مریم کی فضیلت کا ذکر ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی فضیلت کا ذکر ہے، وہاں یہ مراد نہیں ہے کہ تمام جہان جو پہلے تھے یا بعد میں ہوں گے، ان جہانوں میں جن میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، ان سب پر گویا حضرت مریم اور دیگر کو فضیلت ہو گئی، یہ مراد نہیں ہے۔ وہاں العالمین سے مراد وہ عالم ہیں جو اس زمانے میں معلوم اور معروف تھے۔ بس حوالہ ال نے ایک ایسے تصور کو دیا جو پہلے سے ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے وقت میں ایک معروف عالم تھا، اور وہ عالم اس عالم سے محدود تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوا اور وسعت اختیار کر کے کل عالمین پہ پھیل گیا۔ بس نسبتی معنوں کے لیے بھی الف لام کام دیتا ہے، اور موقع محل کے مطابق آپ کو اگر الف لام کا حقیقت سمجھ لیں تو معنی سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہے گا۔ ال کا معنی ذہن میں موجود کوئی خاص معنی بھی ہے، اور عالمین کا لفظ قرآن کریم میں بعض دفعہ اسی حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہے کلیتاً، زیادہ سے زیادہ جتنے معنی لفظ ال دے سکتا ہے وہ حمد میں پائے جاتے ہیں، اللہ کی حمد میں۔ اور دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی ان سب جہانوں کا جو تھے یا ہیں یا ہوں گے، یا جتنی بھی ان کی قسمیں ہیں، زندگی کے جہان ہوں یا موت کے جہان ہوں، ہر قسم کے جہان اس لفظ عالمین میں شامل ہوئے، اور ان کا رب ہے۔ اب رب کا کیا مطلب ہے؟ ہم جب کہتے ہیں رب تو مراد اللہ سے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ اور رب بعض اپنے اپنے معنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، وہ نام ہے جو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس کی تشریح کی بھی کوشش کی گئی ہے، مگر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، ترجمہ ہو رہا ہے اس وقت، مگر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا نام ہے، آگے اس کا تعارف ہو رہا ہے۔ وہ رب ہے۔ رب کا معنی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کی کنجی ہے۔ یہاں کچھ ذرا ٹھہر ٹھہر کے معنی بیان ہوں تو آئندہ قرآن کریم کو سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو جائے گی۔ رب کا مطلب ہے تربیت دینے والا، پالنے والا، رزق عطا کرنے والا، ادنا حالت سے سنبھال کر آئندہ اعلیٰ حالتوں کی طرف ترقی دینے والا۔ جب عربوں کے متعلق کہا جاتا ہے وہ محاورے میں کہ رب الفلوہ، تو مراد ہے اس نے گھوڑے کے بچے کی اس وقت پرورش شروع کی جب وہ ابھی پیدا ہی ہوا تھا، اور پرورش دیتے دیتے اس کو پروان چڑھا کر قابل گھوڑے کی عمر تک پہنچا دیا۔ تو ہر وہ شخص
जो खुदा की रुबूबियत की सिफत से हिस्सा लेता है उसे मालूम करना चाहिए कि उसके ताल्लुक में जो भी चीज़ आए वो फिर संवरती चली जाए, तब वो सिफत रुबूबियत का हिस्सेदार बनता है, वरना नहीं। अगर एक शख्स किसी चीज़ पे काबिज होता है, उसकी दो ही हालतें करता है, या तो बद से बदतर होती चली जाती है या अच्छी से अच्छी होती चली जाती है, या महलों के खंडरात बन जाते हैं, या महलों पर और महल्लात के इजाफे होते हैं और मंजिलें बनती हैं और जहान कुशादा होता चला जाता है। तमाम दुनिया के इंतजामात का यही हाल है। अच्छा मुंतजिम थोड़ी चीज़ से बात शुरू करके उसे तरक्की देता देता बुलंदी की तरफ भी ले जाता है, उसको फैलाता भी चला जाता है। रब में ये सारे माने पाए जाते हैं। तो रब्बिल आलमीन का मतलब है जितने भी जहान मुतसव्वुर हो सकते हैं उन सब का अल्लाह ताला की रुबूबियत से एक लाजमी ताल्लुक़ है। किसी जहान को भी खुदा ने अपनी हालत पर खड़ा नहीं रखा, बल्कि अल्लाह के ताल्लुक़ से और उसकी दो सिफ़ात से जो पहले बयान हुए हैं, यानी रहमानियत और रहीमियत, उनके जलवा दिखाने के नतीजे में रुबूबियत ने हर चीज़ को तरक्की दी है और सारे जहान जितने भी हैं तरक्की पजीर हैं। फिर फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान भी है और रहीम भी है। इसके मुतालिक बहुत से अहमदी सवाल करते रहते हैं और मैं पहले जवाब दे चुका हूँ, मगर यहाँ तर्जुमे के तौर पर सिर्फ सिखाना चाहता हूँ कि पहले जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है उसका ताल्लुक़ तमाम कायनात के आगाज़ और इंसान के आगाज़, हर चीज़ के आगाज़ से है। रहमानियत के नतीजे में बिन मांगे देने वाला तख्लीक करने लगा और उन चीज़ों की तख्लीक उसने मुकम्मल की जो चीज़ें मांगने की अहलियत ही नहीं रखती थी। उनको वजूद की खलत बख्शी, फिर उनको तरक्की, रबूबियत ने उनको तरक्की दी। तरक्की देकर कहाँ तक पहुँचाया? उस मकाम पे पहुँचा दिया जहाँ एक और जहान उसके लिए रोशन हो गया, जिसे खल्क़ आखिर कहा जाता है। और वो जहान है कुरान का जहान, मज़हब का जहान, अल्लाह से ताल्लुक़ का जहान। तो आलमीन के एक नए माने वजूद में आए और उन नए मानों के लिहाज से रहमानियत और रहीमियत का तकरार ज़रूरी हो गई। चुनांचे कुरान करीम ने ये नहीं फरमाया अल अलीमो और अल आलिमो अल्लमल कुरान, बल्कि फरमाया अर रहमान अल्लमल कुरान। ये रहमान खुदा है जिसने कुरान सिखाया है। यानी कोई मांगने वाला नहीं था, एक नया जहान इंसान के लिए रोशन फरमा दिया जो रूहानी तख्लीक का जहान है, और उसका भी वही रहमान खुदा है जो आम कायनात का रहमान खुदा है। मगर यहाँ ताल्लुक़ सिर्फ उन बंदों से हो जाएगा जो खुदा की पर ईमान रखते हैं, उसके कलाम से रोशनी पाते हैं, उसकी हदायत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। बस वो मज़मून जो तख्लीक कायनात से शुरू हुआ था, अब रूहानी तख्लीक के मैदान में या जहान में दाखिल हो जाता है और आगे उसी के साथ ताल्लुक़ है। बस दूसरा रहमान और दूसरा रहीम हमें बताता है कि रहमान खुदा ने इंसान की रूहानी तरक्यात के लिए भी एक जहान नौ पैदा कर दिया है, और वो रहीम भी है, वो छोड़ेगा नहीं, मुसलसल हदायत के समान करता रहेगा। आदम के वक्त उसकी रहमानियत ने जो जलवा दिखाया था वो वहाँ ख़त्म नहीं होगा, बल्कि बेहतर से बेहतर जलवे ज़ाहिर होते जाएंगे। और रुबूबियत की यही शान है कि हर जलवा पहले से बढ़कर शान में हो, और वो जो जलवे हैं वो उनमें खुदा ताला हर वक्त ज़रूरत का ख्याल रखते हुए जब ज़रूरत पड़ेगी रहीमियत के ताबे रूहानी मसाइल के हल पेश फरमाता चला जाएगा। मालिक यौमिद्दीन, अर्रहमान अर्रहीम के माने तो आप समझ चुके हैं। ये मैं बताना भूल गया था कि लफ्ज़ रहम से इनका ताल्लुक़ है। रहम में मादर का भी इसी मादे से ताल्लुक़ है, रहम का भी इसी मादे से ताल्लुक़ है। रहम के लफ्ज़ की जितनी शक्लें हैं उन सब का रहमानियत और रहीमियत से ताल्लुक़ है। फरमाता है मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है दीन के दिन का। दीन का दिन ये क्या चीज़ है? इसके बहुत से मानी किए जाते हैं, लेकिन तर्जमे के लिहाज से निस्बतन मुख्तसर मैं आपके सामने रखता हूँ
एक तर्जुमा तो खुदा ताला ने खुद फरमाया, कुरान करीम ही में बयान फरमाया, व मा अदरा का मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु लिनफ्सिन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह है। तुम्हें क्या चीज़ समझाए कि दीन क्या होता है? दीन उस वक्त का नाम है जबकि हर मलकियत अल्लाह की तरफ लौट जाएगी और खुदा के सिवा कोई मालिक नहीं रहेगा। यौम तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, कोई शख्स किसी जान के लिए, ना अपने लिए ना किसी गैर के लिए, किसी चीज का अदना से भी मालिक रहेगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कुल्लियतन हुकूमत और मिल्कियत खुदा की तरफ लौट जाएगी। तो मालिक यौमुद्दीन का एक और अहम तरीन माना है आखिरत का वो दिन जबकि वो आर्जी मिल्कियतें जो रहमान खुदा ने अता की होंगी खुदा को वापस लौटा दी जाएंगी। फिर वो फैसले फरमाएगा और हर चीज़ अपने असल की तरफ वापस चली जाएगी। आगाज से लेकर अंजाम तक की सारी कहानी, तमाम इर्तिका, खा वो मादी था, खा वो ज़िंदगी का था, खा वो मज़हब का था, वो सारा इन आयात में बयान फरमा दिया गया और अव्वल से आखिर तक की सारी कहानी मुकम्मल हुई मालिक यौमुद्दीन पर। वो मालिक है यौमुद्दीन का। लफ्ज़ मालिक का है मतलब है मालिक, आप समझते हैं, और मालिक किसी को जवाबदेह नहीं होता। मालिक जो चाहे फैसला करता है, लेकिन एक तसल्ली दिला दी कि जो मालिक है वो रहमान भी है और रहीम भी है, उससे डरने की कोई बात नहीं। जो भी फैसले करेगा हद से ज़्यादा रहम वाले होंगे और बार बार रहम का सलूक करेगा, कई तुम्हारी टूटी हुई तौबों को माफ़ फरमा देगा और फिर भी अगर किसी के खिलाफ सजा का फैसला हो तो वो सच्चा फैसला, फिर किसी के लिए कोई शिकवे का हक नहीं। बस मालिकियत उसको लौटी है जो सबसे ज़्यादा रहमान और सबसे ज़्यादा रहीम, उसको नहीं लौटी जो सख्त मिजाज है और भी सिफात है, मगर उन सब सिफात को तर्क करके रहमानियत और रहीमियत की पनाह में दोबारा इंसान को दे दिया गया। जहाँ से आगाज़ हुआ था वहीं अंजाम हुआ और नेक आगाज़ था, नेक अंजाम हुआ। ये तारुफ सूरह फातिहा कराती है। अल्हम्दो, सब तारीफ़ या तमाम तर तारीफ़, हर सच्ची और हकीकी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, बेहद रहम करने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है और बिन मांगे देने वाला है। वो तमाम कायनात का खुदा है और मजहबी कायनात का भी खुदा है और आखिरत के दिन का मालिक है। दीन का एक मतलब है मज़ाहिब और रस्ते, तो मालिक यौमुद्दीन का मतलब है कि जब दीन का दौर शुरू होगा उस वक्त भी मालिक खुदा ही होगा और दीन के ज़मानों में अगर किसी को हुक्म देने का हक है तो सिर्फ खुदा को है। अल-अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह से पता चलता है। तो जहाँ दीन की बातें करोगे किसी और की बात नहीं सुननी, सिर्फ अल्लाह की बात सुननी है, क्योंकि वो दीन के ज़मानों का, दीन के दौर का मालिक है। इसके बाद क्या बाकी रह जाता है? सिवाय इसके कुछ बाकी नहीं रहता कि इंसान उसके सामने सर झुका दे और ये इकरार करे कि ईया का नाबुदो। लफ्ज़ ईया का मतलब है तुझे और सिर्फ तुझे, तेरी और सिर्फ तेरी। अगर नाबुदो का तर्जुमा किया जाए हम इबादत करते हैं तो ईया का मतलब होगा सिर्फ तेरी और सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, हम तेरे सिवा और किसी की इबादत नहीं करते। लेकिन नाबुदो में एक मुस्तकबिल के माने भी पाए जाते हैं, एक इरादे का इजहार भी पाया जाता है, हम करेंगे या करना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि ए खुदा जो इतनी अजमतों का मालिक, आगाज़ और अंजाम सब का मालिक है, हमने फैसला तो कर लिया कि अब तेरी इबादत करेंगे क्योंकि खैर तेरे सिवा किसी और जगह है कोई नहीं, मगर करेंगे कैसे? क्या हमें ताकत है? तो इसका जवाब सूरह फातिहा सिखाती है नहीं। ये दुआ करो व इय्याका नस्तईन, मदद के बगैर हमें ये तौफीक नहीं मिल सकती। तेरी इबादत करते हैं, तेरी करेंगे, सिर्फ तेरी करते हैं, सिर्फ तेरी करेंगे, मगर तुझसे मदद मांगते हो।
उसके बगैर हमें तौफीक नहीं मिल सकती। ईया का मतलब है फिर सिर्फ तेरी ही, सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, और हम सब इबादत करने वाले मांगते हैं। यानी वो तमाम जो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं वो इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं। दुआ क्या है, मदद क्या है? ईया का नस्तईन का ताल्लुक़ पहले से भी है और बाद से भी है। अगर इसको पहली आयत के हिस्से से जोड़ें, और उसी आयत का ये हिस्सा है, जुड़ना चाहिए उसके साथ। ईया का नाबुदो, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और दूसरा मतलब है मदद मांगते क्या हैं, इबादत किसको कहते हैं, उसकी क्या माने हैं। फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये दुआ करो। मदद ये मांगते हैं कि हमें इबादत के ज़रिए सच्चे रास्ते और दरमियानी रास्ते और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि इबादतें टेढ़े रास्तों पर भी होती हैं और इबादत के हज़ार तरीक़ दुनिया में राइज हैं। बाद लोग एक टांग पे खड़े होकर सारी रात वो शोर मचाते हैं, कहते हैं इबादत हो गई। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखा दी कि सिर्फ इबादत मेरी करना काफ़ी नहीं, मेरी वो इबादत करना ज़रूरी है जो उस रास्ते पर चलने वालों ने की जिनकी इबादत में कबूल कर चुका हूँ। तो फरमाया ईया का नाबुदु ईया का नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। सिरातल लज़ीना, इहदिना का मतलब है दे हमें हिदायत। ना जहाँ जहाँ आता है कुरान करीम में, इसका एक माना हम है, और नस्तईन में जो पहला नून है वो भी हम के माने रखता है, और अना में जो ना है वो अपनी ज़ात की तरफ इशारा करता है। तो नून के लफ्ज़ में कोई नफसी हवाला शामिल है अरबी मानों के लिहाज से। बस इहदिना का मतलब है हम सब को हिदायत दे। हिदायत एक अरबी लफ्ज़ है, आप सब जानते हैं, उर्दू में भी राइज है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। हदा का मतलब हिदायत दी, यहदी का मतलब है हिदायत देता है। और जब इससे इल्तिजा का लफ्ज़ बनाना हो या अमर का सीगा बनाना हो तो कहा जाता है इहदे, हिदायत दे। तो एक जब मुखातब है तो इहदे कहेंगे, तो ए खुदा इहदे ना, हमें हिदायत दे। अस्सरात, फिर सिरात आ गया, अलिफ लाम आ गया साथ, उस खास रास्ते की। अल मुस्तकीम, जो बिल्कुल सीधा है, उसमें कोई कड़ी नहीं। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, लेकिन इसके बाद फिर कौन सी शर्त बाकी रह गई थी जो वजाहत करनी पड़ी, वो मैं बता देता हूँ। सीधे रास्ते पर कुछ लोग पहले भी चले हैं और खुदा की तरफ से हिदायत पाकर चल पड़े थे, मगर रास्ता छोड़ गए, बेवफाई की। कुछ रास्ते पर कायम रहते हुए रास्ते के मजमून बदलते रहे, कुछ रास्ता छोड़कर किसी और तरफ निकल गए। तो अल्लाह ताला कहता है दुआ कामिल करो, ये मुकम्मल दुआ है, जब तक मुकम्मल नहीं होती तुम्हें छोड़ना नहीं, तुम्हें सिखा के छोड़ना नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की। अल सिरात, वो सीधा रास्ता जो हकीकी और असली और कामिल सीधा रास्ता है, जो सीधा है हर पहलू से और बीच के रास्ता है, दरमियानी राह है और अपनी ज़ात में कायम है। उस रास्ते की हिदायत दे, मगर उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम फरमाया। इनाम उन्हीं लोगों को मिलता है, रास्ते पर चलने वालों को, जो मंजिल को पाते हैं और सीधे रास्ते पर जान देते हैं। जो रास्ते को खेड़ना शुरू कर दें, गड़े डाल दें या दाएं बाएं हट जाएं, वो इनाम वाले नहीं रहते। तो फरमाया उन लोगों का रास्ता अता फरमा जिन पर तूने इनाम फरमाया। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, उन लोगों का रास्ता नहीं जो मग़ज़ूब हो गए, वला ज़ालिमीन, ना गुमराह होने वालों का रास्ता। यहाँ तर्जमे में मैंने अमलन ये तर्जमा नहीं किया इरादतन कि जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। आमतौर पर
ترجمے में ये मिलता है, ये मफहूम है, इसमें पाया जाता है, मगर इससे जो असल इबारत है उसका माना कुछ महदूद हो जाता है. गज़ब तक का लफ्ज़ नहीं आया. उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, ये सूरह फातिहा में नहीं लिखा हुआ. ये लिखा हुआ है जो मग़ज़ूब ठहराए गए या मग़ज़ूब बन गए, जिन पर गज़ब नाजिल किए गए. और इसमें गज़ब का जो मज़मून है ये वसी हो जाता है. बाद लोग अल्लाह की तरफ से भी लानत का निशाना बनते हैं और दुनिया की तरफ से भी लानत का निशाना बनते हैं. बाज़ कौमों के मुतालिक कुरान करीम में आता है कि उन पर खुदा की भी फटकार पड़ी और दुनिया की भी फटकार पड़ी, और वो दुनिया के वालों के गज़ब का भी निशाना बनाए गए और बनाए जाएंगे, और वक्तन फ़वक्तन उनके साथ ये होता रहेगा. इसलिए अगर ये कहा जाए कि तेरे गज़ब का निशाना बने तो ये मज़मून बीच में से निकल जाएगा. इसलिए वही रहना चाहिए जहाँ सूरह फातिहा ठहरती है कि वो लोग जो गज़ब का निशाना बनाए गए, किसकी तरफ से ये छोड़ दिया है, कई तरफों से बनाए गए. उनकी रानी हमें चाहिए, ना उनकी जो खुद गुमराह हो गए और रास्ता ही छोड़ बैठे. कुछ लोग रास्ते पर कायम रहे और ऐसी बद हालत में कायम रहे कि उससे फ़ायदा उठाने की बजाय रास्ते को नुकसान पहुंचा गए. मसलन यहूद हैं, उन्होंने तौहीद का दामन नहीं छोड़ा जो असल हदायत का मकसद है, लेकिन और ऐसे जुल्म किए और जुल्मों का शिकार हुए कि लोग उनके गज़ब का निशाना बनने शुरू हो गए. उसी रास्ते पर ठहरते हुए उसके गलत माने कर करके उन्होंने लोगों को अपना मग़ज़ूब बना लिया. नतीजा यही निकलना चाहिए था कि वो खुद मग़ज़ूब हो जाते और अल्लाह के भी मग़ज़ूब हुए. और जिन बनी नौ इंसान पर अल्लाह के नाम पर गज़ब ढाए थे, अल्लाह ने उनको इजाज़त दी और तौफीक दी कि वो बदले लें इनसे, और ये सिलसिला जारी हो गया. फरमाया हमें उनसे पनाह चाहते हैं, वो रास्ता नहीं चाहिए. रास्ता दे तो वो दे जिस पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह चले, जिस पर आपसे पहले दूसरे अंबिया चले, अंजाम तक, नेक अंजाम तक पहुँचे, अपने मंजिल मकसूद को पा गए. और उन भटके हुओं का रास्ता भी नहीं जो ईसाई हैं, बज़ाहिर रास्ते पर हैं लेकिन खुदा का बेटा बना बैठे और गुमराह हुए और दुनिया को गुमराह कर दिया. तो ये है सूरह फातिहा का तर्जमा कुछ वजाहत के साथ. सिरात का मतलब है रास्ता, अल्लज़ीना का मतलब है जो लोग या वो लोग. आमतौर पर जिन लोगों, जो लोग के माने में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. सिरात को जब अल्लज़ीना के साथ जोड़ा जाता है, जोड़ा गया, तो मतलब है सिरात अल्लज़ीना, उन लोगों का रास्ता. ये लफ्ज़ जब का है उर्दू में, उसका, इसका, हमारा, तुम्हारा, इसको अरबी में मुख्तलिफ तरीक़ पर बयान किया गया है और कुरान करीम में कसरत से ये तरकीब आती है, इसलिए इसको समझ लीजिए. इसको कहते हैं मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह. शुरू ही से ये शुरू हुई है रब्बिल आलमीन. रब आलमीन कौन किसका है? आलमीन रब के हैं. तो जो पहले दर्ज हो उसका हो जाता है और जो बाद में आए वो पहले का बन जाता है. ये तरकीब मुसलसल इसी तरह कुरान करीम में और अरबी में राइज है, कुरान करीम में भी इसी तरह राइज है. मालिक यौम, मालिक का मतलब है मालिक, यौम का मतलब है दिन या ज़माना. तो यौम बाद में आया, मालिक पहले आया, और इन दोनों को इस तरह जोड़ा गया कि यौम का मालिक खुदा बन गया. सिरातुल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता. रास्ता और अल्लज़ीन दो अलग अलग लफ्ज़ थे. सिरातुल लज़ीना जब जोड़ा गया तो मतलब है उन लोगों, रास्ता उन लोगों का. अनअमता अलैहिम, ये तो हाँ, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, ये भी वही तरकीब है लेकिन ज़रा मुश्किल, इसको छोड़ देते हैं. सिर्फ ये बताना मकसूद है कि इसका, उसका, मेरा, तेरा अरबी में जिस तरह बयान किया जाता है, ग्रामर में उसको कहते हैं मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह. मुज़ाफ़ वो है जो किसी की तरफ मंसूब हो, मुज़ाफ़ इलैह है जिसकी तरफ कोई चीज़ मंसूब हो. इसके बाद आमीन कहा जाता है.
अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम फरमाने वाला और बिन मांगे देने वाला है और बार बार रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये सूरह बकरा का आगाज़ है। बिस्मिल्लाह से शुरू होकर अलिफ लाम मीम, यानी दूसरी आयत अलिफ लाम मीम है। इसके बाद फिर बाकी मज़मून शुरू हो जाता है। अल बकरा की जो सूरत है ये सबसे पहले है, लेकिन है हिजरत की, यानी इसका नज़ूल मदीने में हुआ है हिजरत के बाद, लेकिन तरतीब के लिहाज से ज़रूरी था कि इसको पहले रखा जाता। ये तफसीरी पहलू मैं छोड़ता हूँ, सिर्फ इख्तिसार से सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मदनी सूरत है, हिजरत के बाद नाजिल हुई है। अलिफ लाम मीम 3 लफ्ज़ हैं, हरफ हैं। अलिफ जो हरफ है ये अंग्रेज़ी में इसका एक मुतबादल तो मुश्किल होगा, क्योंकि कई माने बन जाते हैं। ए लफ्ज़ किसी हद तक अलिफ के मुशाबे है, लेकिन जब ये शुरू में आए ए तो ये हमज़ा के मुशाबे हो जाता है। बहरहाल जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं उनके अंदर अलिफ लाम और मीम, लाम मसलन एल के मुशाबे है, मीम एम के मुशाबे है, तो 3 हरूफ हैं। अब इन 3 हरूफ से सूरह बकरा का आगाज़ क्यों किया गया, यानी बिस्मिल्लाह के बाद सूरह बकरा का आगाज़ क्यों किया गया, ये भी बहस चूँकि बार बार उठनी है, इसलिए मैं यहाँ आपको अच्छी तरह समझा देना चाहता हूँ। क्या ये हरफ बेमानी है, महज हरूफ हैं, या कोई और माने रखते हैं, और क्या क्या माने रखते हैं, क्यों बात को खोल कर बयान नहीं कर दिया गया, क्यों सिर्फ हरूफ में बात की गई, और आगाज़ ही में ये मुश्किल क्यों पेश आ गई। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ रोशनी डाली है। सबसे ज़्यादा उम्दा सैर हासिल और पुरलुत्फ़ बहस तफसीर कबीर में उठाई गई है। हज़रत मुस्लिम मऊद खलीफुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मज़मून के हर पहलू पर खूब खुल के रोशनी डाली है। खुलासतन इसका तर्जमा ये किया जाता है, मैं हूँ अल्लाह ज़्यादा जानने वाला। इस तर्जमे की वजाहत यह है कि अलिफ को अल्लाह का पहला हरफ शुमार करके, लाम को अलिफ को अना का पहला हरफ शुमार करके, लाम को अल्लाह का बीच का हरफ शुमार करके, और मीम को आलमों का आखिरी हरफ शुमार करके एक जुमला बना लिया गया है, और ये ख्याल किया गया है कि इस जुमले का ये नुमाइंदा है। और इस पहलू से जुमले की के हरूफ की तरतीब इसके साथ मुताबिकत खा रही है। पहला हरफ उस लफ्ज़ का जो समझा गया है उसका पहला होना चाहिए, बीच का हरफ उस लफ्ज़ का बीच का होना चाहिए जो हमने समझा, और मीम उस लफ्ज़ का आखिरी होना चाहिए, क्योंकि अब भी आखिर पे है जो हमने समझा। तो इसलिए मुफस्सिरीन का ये जहाँ जहाँ भी जिन्होंने भी बयान किया है, ये बयान करना कि इसका मतलब है अना अल्लाह आलम, एक माकूल बात है। और इसलिए भी इल्म का मजमून इससे ताल्लुक़ रखता है, और गालिबन वो अव्वल माने रखता है कि बाद में इल्म की बात ही हो रही है और कामिल इल्म की बात हो रही है। बस ये तर्जमा भी इसका मुमकिन है और भी मुमकिन है। बाद लोगों ने अलिफ से अल्लाह मुराद लिया, अलिफ लाम से अल्लाह मुराद लिया है, और मीम से मोहम्मद मुराद लिया है। अलिफ लाम अल्लाह और मीम मोहम्मद, इन दो के इत्तिसाल से वो नेमत वजूद में आई जो जिसको हम कुरान की नेमत कहते हैं, और नबूवत भी मिली और किताब भी मिली। तो जितने भी ऐसे माने हैं जो कुरान के साथ मुताबिकत रखते हैं, पुरमारिफ हैं, जो कुरानी तालीम से टकराते नहीं बल्कि इंसान के रूहानी लुत्फ़ को बढ़ाने वाले हैं, वो तमाम इजाज़त है कि इन हरफों में की तरफ मंसूब कर दिए जाएं। बस अलिफ लाम मीम जो हरूफ
کی صورت میں مضمون بیان ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کرنے والی کتاب، اور یہ مضمون قرآن پر آگے ہر جگہ حاوی ہو جائے گا۔ ایسا کلام ہے کہ ایک ایک حرف میں اس کے معنی ہیں، اور اس کا صرف حروف سے مقطعات سے تعلق نہیں، بلکہ قرآن کریم کی دوسری آیات پر بھی جب آپ غور کریں تو بہت سے حروف ایسے ہیں جن پر نظر پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر اس محل پر رکھے گئے ہیں اور اس سے خاص معنی پیدا ہوتے ہیں۔ بعض صوتی مطابقتیں ہیں اور بعض نغماتی مطابقتیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا حروف کے استعمال اور محل اطلاق سے تعلق ہے۔ بس الف لام میم نے ایک قسم کا چونکا دیا ہے پڑھنے والے کو کہ ایسی کتاب کو پڑھنے لگے ہو جس کے حرف حرف میں جان ہے، حرف حرف میں پیغام ہے، اس لیے ہوش اور غور سے پڑھنا۔ دوسرا اس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، اور اس کا یہ مضمون بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت شدہ ہے کہ حروف میں بعض اعداد مضمر ہوا کرتے ہیں، اور ان اعداد کے حوالے سے بعض تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بس الف لام میم اور بعد میں آنے والے ایسے ہی مقطعات، یعنی ان صورتوں کا آغاز جو حرفوں سے شروع ہوتی ہیں، ان کا بعض زمانی قدروں سے بھی تعلق ہے، ایسی باتوں سے تعلق ہے جو مخصوص زمانوں میں ہونے والی ہیں، اور اس رنگ میں پیشگوئی کا رنگ ان حروف میں پایا جاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو چونکہ مدینے میں نازل ہوئی تھی، یہود یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک منصوبہ بنا کے حاضر ہوئے، کیونکہ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ حروف کے عددی معنی لیے جاتے تھے اور ان پر بڑا زور دیا جاتا تھا۔ آج بھی میں نے بائبل کی ایسی کامنٹریز دیکھی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ یہ حروف ان اعداد کے علمبردار ہیں، اور آگے سارا مضمون ان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس پر یہود علماء خصوصیت سے بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمیں علم اعداد دیا گیا ہے، اور ہماری بائبل میں اس مضمون کو بڑی عمدگی کے ساتھ نبھایا گیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ان کو استعمال کیا اور اس میں کچھ پیشگوئیاں کی۔ یہود نے اپنے مرضی کے معنی ان لفظوں حرفوں کو پہنانے کے لیے یہ سوچا کہ الف کا مطلب ہے 1، لام کا مطلب ہے کلمہ 30، اور میم کا مطلب ہے 40، تو کل 71 سال ہوئے۔ تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وقت ختم ہو گیا اتنی جلدی؟ اوہو، خیر کوئی بات نہیں، 71 سال کی بات تو بعد میں ہوگی، اور یہ کہتے ہیں آدھا منٹ رہ گیا صرف۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ کی دین کی عمر صرف 71 سال ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اور مقطعات پڑھنے شروع کیے کہ مجھ پر یہ بھی نازل ہوا ہے، وہ بھی نازل ہوا ہے، وہ بھی نازل ہوا ہے۔ وہ عدد بڑھتے گئے یہاں تک کہ یہود نے کہا بات ہمارے کے ہاتھ سے باہر نکل گئی ہے۔ بس قرآن کریم کے اعداد دراصل لامحدود معانی رکھتی ہیں، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ میں آپ کو سورہ بقرہ کے باقی معنی بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی کمزوری نہیں، کھاتا ہے لیکن موٹا نہیں ہو رہا، اس میں ایک